So today we are going to start the new unit, and there are some topics remaining in Unit 5, and we will be covering those topics after we finish this unit. Okay, because those topics are not that important. So I left those to cover them up later if time allows. ठीक है ना, अगर हमारे पास टाइम बचता है in the end of the session तो हम उसे कवर कर लेंगे और मे बी we can have some extra classes for those topics. ठीक है, one of okay. ठीक है, एक्चुअली नेटवर्क इशू आ गया था. ठीक है. Now, what I was saying that we are going to cover this unit. This unit is related to sliding contact bearing. I want to ask you what is the difference between the rolling contact bearings and sliding contact bearings? Anyone? Abdullah and Hitik? Anyone of you? What is the difference between the rolling contact bearing and sliding contact bearings? बता सकते हैं? Hitik, Abdullah. No. सर टाइप ऑफ बताओ. कांटेक्ट जो स्लाइडिंग में होता होगा वो स्लाइडिंग मतलब नाम से ही लग रहा है कि हाँ, ठीक कांटेक्ट है. की जो टाइप है. कॉन्टैक्ट स्लाइडिंग होता है. ठीक है. बेसिकली यस, ये बात तो इससे समझ में आ रही है. डायरेक्टली देर इज शाफ्ट होता है एंड जर्नल होता है. ठीक है ना. ठीक है. और बियरिंग हाउसिंग होती है. इफ यू हैव सीन द your roller contact bearing, या rolling contact bearing, so in that this is your shaft and this is your housing, and in between there is some rolling elements. ठीक है. तो यहाँ पर जो आपका है कोई रोलिंग एलिमेंट नहीं होता डायरेक्टली. तो यहाँ पर होता क्या है कि मोशन जो होता है. ठीक है. ये बीच में जो रोलिंग मेंबर्स हैं, दीज रोल. ठीक है ना. रोलिंग मोशन होगा इनका. ठीक है ना. रोलिंग मोशन से मतलब दे आर ट्रांसलेटिंग और एंड दे आर रोटेटिंग एट द सेम टाइम. ठीक है. But in case of sliding contact bearings, there is nothing. It is your shaft and this is your housing. Outside part housing. Okay, and this is your shaft, and in between there is some lubricant. Okay? There is some lubricant, and these lubricants are used to uh, reduce the friction. ठीक है. And uh, in a special case these lubricants are responsible for carrying the load. ये जो lubricant भरा हुआ है यहाँ पर, वही हमारा लोड कैरिंग के लिए जिम्मेदार भी होता है. ठीक है ना. ये मेटल टू मेटल कांटेक्ट बनने नहीं देता है. ठीक है ना. तो ये देखेंगे कि ये लुब्रिकेंट कैसे लोड कैरी करता है.
लुब्रिकेंट लोड कैसे कैरी करता है। यहाँ पे तो ये सारे के सारे रोलिंग एलिमेंट्स जो थे वो लोड कैरी करते थे, बट here lubricant is responsible for the carrying the load, carrying the load. Okay, so before proceeding I would like to go through the syllabus of this unit. It starts with classification of sliding contact bearings. ठीक है ना, हम ये देखेंगे कि on how many uh, different basis these sliding contact bearings are classified. ठीक है, and then स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग में आपका लुब्रिकेशन का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है ना, लुब्रिकेटिंग ऑयल जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है. सो वी विल सी the lubricating oils and its properties, selection of lubricating oils and properties and selection of bearing elements, properties and selection of bearing elements. ठीक है ना, so these are somewhat theoretical part. ठीक है, and then here comes the actual the analytical thing, and that is your hydrodynamic lubrication. And in here we will be discussing hydrodynamic lubrication theory. Okay, and we will be driving some relations. uh, Those are related to Reynolds equation, Sommerfeld number, and solving this Reynolds equation using Raimondi and Boyd method. Okay, and then we will go to the thermal consideration. As we know that your as the there is some movement between the housing and the shaft, there will always be some friction. ठीक है ना, always some friction, and due to that friction heat generates, and जैसे जैसे heat generation होगा temperature rise होगा तो आपके lubricant की properties जो है वो बदलेंगी. ठीक है ना, so how will you take that phenomena or that thing into account? We will be seeing in thermal consideration. And there are some parameters related to the bearing design. And one of the main parameters that is related to bearing design is Sommerfeld number. It is a very important parameter related to bearing design. And some other parameters are length to diameter ratio, unit bearing pressure, radial clearance, and minimum oil thickness. minimum film thickness. ये देखेंगे ये सारे टर्म्स क्या क्या हैं. ठीक है, सो कमिंग टू स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग्स होते क्या हैं. ठीक है, sliding contact bearings are also called plain bearings or journal bearings or sleeve bearings. Sliding contact bearings are also called journal bearings or plain bearings or sleeve bearings. ठीक है, the surface of the shaft slides over the surface of the bush, resulting in friction and wear. In order to reduce the friction, these two surfaces are separated by a film of lubricating oil. The bush is made up of special bearing materials called white metal or bronze. ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है, सिंपल आपका इसको अगर एंड व्यू देखें या फ्रंट व्यू देखें आप इस तरीके से. ठीक है, so this is your shaft, and at the end you have your this is your bearing, and you can also see it like this. अगर इसका एंड व्यू देखा जाए तो ठीक है, सो ये तो आपका शाफ्ट वाला पोर्शन हो गया. दिस वन इज
ये जो आउटर केसिंग है, इट इज कॉल्ड योर हाउसिंग, ठीक है। एंड द इनर पार्ट, जितना ये पार्ट इसके अंदर है, ठीक है ना, इसको हम कहते हैं जर्नल। क्या कहते हैं? जर्नल। शाफ्ट का जितना हिस्सा जो है हाउसिंग के अंदर है, दैट इज नोन एज जर्नल। जर्नल, ठीक है। और इसी वजह से इसको जर्नल बेरिंग भी कहते हैं, ठीक है ना। तो एंड इन बिटवीन द जर्नल एंड द हाउसिंग, यहाँ पर आपको क्या भरा मिलेगा? लुब्रिकेंट, लुब्रिकेटिंग ऑयल, ठीक है। एंड दिस इज योर सिंपल स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग और जर्नल बेरिंग और स्लीव बेरिंग भी कहते हैं। स्लीव बेरिंग भी इस वजह से कहते हैं कि एक तरीके से स्लीव की तरह काम करती है, स्लीव की तरह काम करती है, ठीक है, स्लीव की तरह काम करती है। तो अभी देखेंगे कि ये कहाँ इसके और क्लासिफिकेशंस कैसे कैसे हैं, ठीक है। नाउ वन थिंग टू रिमेम्बर इज the main purpose of lubricating oil here is to reduce the friction and carry the load carry करने का काम करती है, ठीक है ना। फ्रिक्शन रिड्यूस करने का और लोड को कैरी करने का, ये दो काम है यहाँ पर लुब्रिकेटिंग ऑयल के, ये आप याद रखिएगा। यहाँ पर सिर्फ क्या मेंशन कर रखा है? फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए, बट the important work is to reduce the friction as well as to carry the load, carry the load also, ठीक है ना। अब कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं, It is used in crankshaft bearings in petrol and diesel engine. कभी भी आप गाड़ी की सर्विस कराने गए होंगे तो आप वहां पर देखे होंगे कि वहां पर ऐसी इंजन के अंदर जो गियर बॉक्स वाला हिस्सा होता है उसके अंदर जो है ये ऐसी बेयरिंग्स मिलेंगे आपको, रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग्स नहीं मिलेंगे, रोलर कॉन्टैक्ट बेयरिंग्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। एंड इन सेंट्रीफ्यूगल पंप्स, large size electric motors, steam and gas turbine, concrete mixers, rope conveyors and marine installations, तो एक बात आप हमेशा याद रखिए कि जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर वो ये है कि जहां कहीं भी हाई स्पीड एप्लीकेशन होती है, ठीक है, हाई स्पीड एप्लीकेशन होती है, ठीक है ना, या फिर वेरी हाई लोड, ठीक है ना, दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। इनमें से कोई भी एक चीज हाई स्पीड हो, ठीक है ना, हाई स्पीड हो या फिर वेरी हाई लोड, वेरी हाई लोड, ठीक है। तो इनमें से एक भी हो या दोनों भी हो तो भी आप कौन सी बेरिंग यूज करेंगे? स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग। रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग्स जो हैं वो लो टू मॉडरेट स्पीड्स एंड लो टू मॉडरेट लोड्स के लिए ही इस्तेमाल की जाती है, बट स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग्स आर यूज्ड फॉर हाई स्पीड, वेरी हाई स्पीड एंड वेरी हाई लोड्स, ठीक है। तो कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं, ठीक है ना, कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं एंड देन वी विल गो टू। सर ये हाँ, लो टू मॉडरेट स्पीड कितने तक रहती है? ये एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन डिफर करती है, मतलब इसको इसका कोई एग्जैक्ट, इसको आप कह सकते हैं कि 5 से 10 किलो वॉट के आसपास, सॉरी, हाँ, 5 से 10 किलो न्यूटन तक का लोड अगर है, सो दैट इज काउंटेड फॉर लो लो टू मॉडरेट लोड, ठीक है ना। 5 से नीचे है तो ठीक है, इट इज अंडर लो, एंड अबव 15 10-15 किलो न्यूटन इट इज कंसिडर्ड एज क्या नाम है, मॉडरेट, एंड अबव दैट 20-30 किलो न्यूटन, दीज आर कंसिडर्ड एज हाई लोड्स, ठीक है ना। ठीक है, तो आप इस तरीके से क्लासिफाई, मतलब कोई क्लियर गैप आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना, ओवरलैपिंग भी आपको मिलेगी, बट यू कैन कंसिडर इट, ठीक है। हरी बात समझ में?
यस सर। Coming to the some advantages and disadvantages related to sliding contact bearings, ठीक है, and this graph is very important. इसमें आपको पता लग जाएगा कि कौन ज्यादा बेहतर है सो किस एप्लीकेशन के लिए। तो आइए बात करते हैं, पहले तो एडवांटेजेस देख लेते हैं। The design of the bearing and housing is very simple, obviously very simple। क्यों? क्योंकि एक स्लीव तो डिजाइन करनी है, ठीक है, दो सिलिंड्रिकल पोर्शन ही तो डिजाइन करने हैं, ठीक है, और तो क्या ही दिक्कत है इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आती। तो डिजाइन तो वाकई में बहुत सिंपल होता है, ठीक है, चाहे ना इसमें कोई बॉल का झंझट, ना उसमें ग्रूव क्रिएट करने हैं, ना ही आपको रेसेस बनाने हैं, ठीक है ना। तो अलग अलग रेसेस में नहीं बनाने हैं, ना अलग अलग रोलिंग एलिमेंट्स बनाने हैं। जैसे सिंपल एक स्लीव टाइप की बनानी है, ठीक है ना, स्लीव बनानी है, बस एक स्लीव बनानी है। So its design is very simple. They occupy less radial space and more compact. Obviously बात है, क्यों? क्योंकि अब जो है हाउसिंग और शैफ्ट के बीच में जो है आपका सिर्फ और सिर्फ लुब्रिकेटिंग ऑयल है, रोलिंग एलिमेंट है ही नहीं। तो लुब्रिकेटिंग ऑयल तो बहुत कम जगह लेगा भाई, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपका शैफ्ट का जो बेयरिंग का जो साइज है वो रिड्यूस हो गया है, एंड हेंस योर बेयरिंग बिकम्स क्या नाम है, कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट दे कॉस्ट लेस, इनकी कॉस्ट भी कम होती है। ऑब्वियसली बात है, जब बेयरिंग का डिजाइन सिंपल हो गया तो इनको बनाना आसान है। तो सिंपल सी बात है कि अब तो सीधे सीधे इनकी कॉस्ट पर डायरेक्टली इफेक्ट पड़ेगा। द डिजाइन ऑफ शाफ्ट इज सिंपल, ऑब्वियसली इट्स नॉट अ वेरी गुड पॉइंट, बट स्टिल इट इज। दे ऑपरेट मोर साइलेंटली, यस, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। दे ऑपरेट मोर साइलेंटली, ठीक है ना। जब रोलिंग एलिमेंट नहीं है, ठीक है ना, मेटल टू मेटल कांटेक्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पर क्या होता है कि बेयरिंग और क्या नाम है, हाउसिंग और शैफ्ट के बीच में लुब्रिकेटिंग ऑयल आ गया है, ठीक है ना। तो अब जो है मेटल टू मेटल कांटेक्ट नहीं होगा ऑन ड्यूरिंग द मूवमेंट, एंड हेंस देयर विल नॉट बी एनी नॉइस, ठीक है ना। रिलेटिवली बहुत कम या ना के बराबर नॉइस होगी इन कंपैरिजन टू your rolling contact bearing, rolling contact bearing. They have very good shock absorbing capacity, ठीक है ना, या सॉरी, they have good shock load capacity, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली बात है कि एक चीज आप, वही बात आ गई कि रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग्स में आपका मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट चांसेस बहुत ज्यादा हैं, एंड मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। सो वहां पर आपके स्ट्रेसेस वगैरह बहुत ज्यादा डेवलप होते हैं। बट यहाँ पर आपका मेटल टू मेटल कांटेक्ट है नहीं, बीच में शैफ्ट और जर्नल के बीच में लुब्रिकेटिंग ऑयल है, तो शॉक लोड अचानक से अगर आपका जर्क वगैरह भी आता है तो ही आपका ये बेयरिंग जो है लोड को कैरी कर सकती है, ठीक है ना, विदाउट एनी शॉक, है ना, विदाउट एनी जर्क, विदाउट एनी जर्क, ठीक है ना। तो शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी भी इसकी अच्छी है ड्यू टू द लुब्रिकेटिंग ऑयल, ड्यू टू द लुब्रिकेटिंग ऑयल। दे आर आइडियली सूटेड फॉर मीडियम एंड हाई स्पीड ऑपरेशन, दे आर आइडियली सूटेड फॉर मीडियम एंड हाई स्पीड ऑपरेशन, ठीक है। कमिंग टू ये अभी बात करेंगे कि ये हाई स्पीड पे ही क्यों यूज की जाती है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक ही है कि बेस्ड ऑन द क्लासिफिकेशन, हाइड्रोडायनेमिक बेयरिंग्स जो हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक ही है कि वो लोड कैरी जो कर पाएंगी वो हाई स्पीड पे ही कर पाते हैं, ठीक है ना। तो वी विल सी दैट थिंग, ठीक है। कमिंग टू द डिसएडवांटेजेस, तो डिसएडवांटेजेस में भाई फ्रिक्शनल पावर लॉस इज मोर, यस, फ्रिक्शनल पावर लॉस इज मोर। क्यों? क्योंकि भाई स्लाइडिंग हो रहा है, एंड you we always know that sliding friction is more than the rolling friction, ठीक है ना, rolling friction, ठीक है ना, sliding friction is more than the rolling friction. They are they require good attention to the lubrication,
ना, लुब्रिकेशन का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, लुब्रिकेशन का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि लुब्रिकेंट प्रॉपर है कि नहीं है, ठीक है ना। खासतौर पे आपको इसका सिंपल सा एग्जांपल बता दिया जाए तो गाड़ियों में इंजन ऑयल जो होता है, ठीक है ना, इंजन ऑयल को आप रेगुलर टाइम पे चेक करते रहते हैं, भाई कम तो नहीं हो गया या जल तो नहीं गया, कम तो नहीं हो गया। तो अगर उसमें कम हो गया तो चांसेस हैं कि आपका इंजन जो है वो खराब हो गया, ठीक है ना। तो वी कीप ऑन ट्रैक ऑफ द लुब्रिकेटिंग ऑयल या लुब्रिकेशन, ठीक है ना। लुब्रिकेशन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है, अदरवाइज मेटल टू मेटल कांटेक्ट होगा और फ्रिक्शन की वजह से वियर होगा, ठीक है, और आपकी मशीन खराब हो जाएगी, ठीक है। दे आर नॉर्मली डिजाइन टू कैरी दी रेडियल लोड, ठीक है, और दी एक्सियल लोड ओनली, ठीक है ना। तो आपने स्लाइडिंग और रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग में देखा था कि रेडियल लोड भी ले सकते हैं और एक्सियल लोड भी ले सकते हैं, और ऐसी बेरिंग्स भी थी जो दोनों एक साथ कैरी कर सकते हैं, बट दीज आर ओनली डिजाइन फॉर आइदर दे कैन कैरी रेडियल लोड और दे कैन कैरी एक्सियल लोड, है ना। ऐसा नहीं होगा कि दोनों लोड्स को एक साथ कैरी कर सकते, दोनों लोड्स को एक साथ कैरी कर सकते हैं, ऐसा जनरली आपका डिजाइन नहीं होता है इन बेरिंग का, जनरली, ठीक है ना। अगर आप डिजाइन करने पे आ जाए तो वो भी कर ही सकते हैं, बट इन जनरल वी डू नॉट डिजाइन this type of bearing for carrying both the loads at the same time, both the loads at the same time, ठीक है। सो यहाँ पर एक ग्राफ बना हुआ है, आई होप इट इज विजिबल टू यू ऑल। this graph is showing how your friction is varying with the speed of the shaft, with the speed of the shaft, जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ती है वैसे वैसे आपकी क्या नाम है, फ्रिक्शन जो है वो कैसी होगी। अलग दो तीनों टाइप की बेरिंग के लिए आपको दिखा रखी है, ठीक है। तो रोलर बेरिंग यहाँ पर जो है वो हम इसमें सिलिंड्रिकल रोलर की बात कर रहे हैं, सिलिंड्रिकल रोलर की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे बॉल, रोलिंग एलिमेंट बॉल, ठीक है। तो फॉर लो और मॉडरेट स्पीड आप देख सकते हैं कि आपके जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन फ्रिक्शन फॉर rolling and ball roller bearing and ball bearing is quite low in comparison to journal bearing, but in case of high speed के केस में क्या होता है कि at higher speeds the a speed comes where the the friction in roller bearing and ball bearing exceeds the friction in the journal bearing. So that's why we generally use journal bearing at higher speeds, at higher speeds, at higher speeds, ठीक है, at higher speeds, सर higher speeds, ठीक है। हाँ सर बताइए। sir which metal हाँ is used in that ball bearing means for making that ball which metal is used, cast iron or high steel? ओके, इन जनरली आपका जो बॉल्स के लिए जो इस मेटल इस्तेमाल होता है वो हार्डेंड स्टील होते हैं, ठीक है, हार्डेंड स्टील, ठीक है, हार्डेंड स्टील, समझ रहे हैं। Yes sir. ठीक, कास्ट आयरन तो मेरे ख्याल से यूज भी नहीं होता, कास्ट आयरन बॉल्स रोलिंग एलिमेंट्स बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं, बट यू कैन यूज दोज फॉर केसिंग के लिए आप बना सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप दिस ग्राफ clarifies why we use journal bearing at higher speeds only, at higher speeds only, ठीक है। अब बात आती है क्लासिफिकेशन ऑफ स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग्स की। क्लासिफिकेशन जो है स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग्स का, इसको हम तीन तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, तीन तरीके, ठीक है ना, तीन कैटेगरी तीन तरीके से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ लोड कैरिंग, मतलब एक्सियल है लोड या रेडियल है लोड या दोनों है, ठीक है।
या फिर दूसरा तरीका है कि लुब्रिकेशन कौन सा इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, लुब्रिकेशन कौन सा इस्तेमाल किया गया है। और तीसरा है आपका बेस्ड ऑन द लुब्रिकेशन मैकेनिज्म, लुब्रिकेशन मैकेनिज्म, ठीक है, लुब्रिकेशन मैकेनिज्म। तो एक एक करके तीनों क्लासिफिकेशन हम देखते हैं, ठीक है। पहला क्लासिफिकेशन आता है हमारा बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ लोड कैरीड, टाइप ऑफ लोड कैरीड, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, इसमें दो तरीके के लोड लग सकते हैं, एक रेडियल लोड लग सकता है, दूसरा थ्रस्ट लोड लग सकता है, मतलब एक्सियल लोड लग सकता है, और तीसरा केस आप ये मान सकते हैं कि दोनों का कॉम्बिनेशन लग सकता है। बट इन जनरल वी डू नॉट यूज दिस, या फिर ये कॉम्बिनेशन हमको नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। तो रेडियल बेयरिंग, ठीक है, इन विच द लोड इज acting radially on the shaft, radially on the shaft, ठीक है। एंड थ्रस्ट बेयरिंग्स, तो थ्रस्ट बेयरिंग्स जो है आपकी ये और एक्सियल बेयरिंग्स, इनमें आपका लोड जो है एक्सिस ऑफ द शाफ्ट के क्या नाम है, कहाँ लगता है भाई, एक्सिस ऑफ द शाफ्ट के along the axis of the shaft लगता है, along the axis of the shaft लगता है, along the axis of the shaft लगता है। and in the radial thrust bearing your load is acting on both the direction, ठीक है। now coming to the based on the type of lubrication, based on the type of lubrication, ठीक है। तो based on the type of lubrication we can classify the sliding contact bearings in three categories। पहला है हमारा थिक फिल्म लुब्रिकेशन, दूसरा है हमारा थिन फिल्म लुब्रिकेशन, एंड तीसरा है हमारा जीरो फिल्म लुब्रिकेशन, ठीक है। तो थिक फिल्म, the diagrams are self-explanatory. If you see that if this is your upper part, को अगर आप कंसिडर करें कि ये आपकी हाउसिंग है, and if you are considering lower part is your journal or shaft journal, ठीक है। and then this the gap, the white part, ठीक है ना, ये जो गैप है ये आपका क्या है, इसके बीच ये आपका लुब्रिकेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सो इफ द थिकनेस ऑफ द लुब्रिकेशन या लुब्रिकेंट इज वेरी हाई, ठीक है ना, बहुत ज्यादा है आपके लुब्रिकेंट की, ठीक है ना, थिकनेस, सच दैट कि मेटल टू मेटल कांटेक्ट अवॉइड हो जाए, ठीक है ना, कि मेटल टू मेटल दोनों सरफेसेस, ये सरफेसेस और ये सरफेस कभी आपस में कांटेक्ट में आए ही ना, तो इस टाइप के लुब्रिकेशन को हम कहते हैं थिक फिल्म लुब्रिकेशन, ठीक है। और दूसरा केस आता है कि जब आपका मेटल टू मेटल कांटेक्ट हो, बट at very few places, and those few places are known as high spots या hot spots, ठीक है ना, hot spots या high spots। तो जहां पर आपके बहुत ज्यादा ये इन जनरली होता है, ऐसा है कि आपका मेटल टू मेटल कांटेक्ट तभी होता है कि क्या नाम है, जब सरफेस रफनेस नई मशीन हो और उसमें ये थोड़ा सा सरफेस रफनेस ज्यादा हो, ठीक है ना। तो इसमें भी आपकी लुब्रिकेशन ऑयल की जो थिकनेस होती है, लुब्रिकेंट फिल्म थिकनेस होती है, वो काफी कम होती है, एंड देयर इज सम वेरी फ्यू मेटल टू मेटल कांटेक्ट। और इसी की वजह से आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है फ्रिक्शन जो है काफी ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू दिस वन, ठीक है ना। तो यहाँ थिक फिल्म लुब्रिकेशन में सबसे कम फ्रिक्शन होता है, ठीक है, एंड थिन फिल्म में थोड़ा उससे ज्यादा होता है, और थिक फिल्म में
सॉरी, जीरो फिल्म लुब्रिकेशन में जो फ्रिक्शन होता है वो सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है। तो जीरो फिल्म लुब्रिकेशन में होता क्या है कि जो लुब्रिकेंट लगता है वो वन और टू लेयर ऑफ दी क्या नाम है, लुब्रिकेंट, जो लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है, अगर ये मेटल सरफेस है, ठीक है ना, तो ये लुब्रिकेटिंग ऑयल की जो थिकनेस, फिल्म थिकनेस होगी, एक दो लेयर ही होगी, ठीक है ना, ये बस मॉलिक्यूल्स की एक दो लेयर ही होगी बस, ठीक है ना, बाकी ठीक। और इसकी वजह से जब इतना कम, वेरी फ्यू, बहुत पतला लुब्रिकेंट की फिल्म होगी, तो मेटल टू मेटल कांटेक्ट बढ़ जाएगा, मेटल टू मेटल कांटेक्ट बढ़ जाएगा, एंड ड्यू टू दिस योर फ्रिक्शन इंक्रीजेस, ठीक है, योर फ्रिक्शन इंक्रीजेस, ठीक है। सो ये अभी आगे देखेंगे कि इस पे एक चार्ट है हमारे पास, इस पे ऊपर एक चार्ट है, ठीक है। तो you can see the coefficient of friction, किस तरीके से हमारा ये coefficient of friction को हमने प्लॉट किया है y एक्सिस पे, एंड देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक नंबर दैट इज नोन एज बेयरिंग मॉडुलस। इसको हम बाद में देखेंगे कि ये है क्या, ठीक है, जिसमें म्यू जो है आपका विस्कस कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, and n is your speed of the shaft in rps, revolutions per second, and it is f, actually ये p होना चाहिए था, तो प्रेशर, ठीक है ना, प्रेशर इन दी बियरिंग, ठीक है। सो you can see that as this quantity increases, ठीक है, आपका जो फ्रिक्शन है वो पहले तो डिक्रीज करता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है इन द बियरिंग, फर्स्ट डिक्रीजेस एंड आफ्टर दैट इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, ठीक है। सो ठीक, सो इसको आप ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से तीन पोर्शंस में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, तीन पोर्शंस में आप डिवाइड कर सकते हैं, ठीक। एक ये पार्ट हो गया, एक ये पार्ट हो गया, एंड एक ये पार्ट, ठीक है ना। ये वाला जो पार्ट है ये आपका जीरो फिल्म थिकनेस, ठीक है, एंड दिस वन इज योर थिन फिल्म, ठीक है, एंड इट इज योर व्हाट, क्या है भाई, ये आपका थिक फिल्म लुब्रिकेशन कहलाए, थिक फिल्म लुब्रिकेशन, ठीक है, थिक फिल्म लुब्रिकेशन। सो इस ग्राफ को आगे स्टडी करेंगे इन डिटेल, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस इसमें और भी चीजें हैं इस ग्राफ में, सो वी विल डिस्कस इट इन मोर डिटेल व्हेन वी गो टू द पेट्रॉक्स इक्वेशन को जो हम एनालाइज करेंगे, देन वी विल बी डिस्कसिंग इट इन मच मोर डिटेल। अब बात करते हैं बियरिंग क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन lubrication mechanism, ठीक है। So they can be classified in five categories, ठीक है ना, पांच तरीके की बेयरिंग हो सकती है। first one is hydrodynamic lubrication, and it is what we are going to study, इसी को हम थ्रू आउट द कोर्स हम स्टडी करेंगे, यही हमारा मेन इस यूनिट का टॉपिक है, ठीक है। देन वी हैव हाइड्रोस्टैटिक लुब्रिकेटेड बेयरिंग, इलास्टो हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेटिंग बेयरिंग, बाउंड्री लुब्रिकेटेड बेयरिंग, एंड देन सॉलिड फिल्म लुब्रिकेटेड बेयरिंग, ठीक है ना। एक एक करके तीनों को, पांचों को देखते हैं, ठीक है। सो इन हाइड्रोडायनेमिक बेयरिंग, ये आपको डायग्राम में दिखा रखा है कि आपकी जो फिल्म थिकनेस होगी वो
बहुत ज्यादा होगी, ठीक है ना, मतलब मेटल टू मेटल कांटेक्ट नहीं होगा, मेटल टू मेटल कांटेक्ट नहीं होगा और फिल्म थिकनेस काफी ज्यादा होगी। और एक चीज ये कि जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है, मेटल बेयरिंग की जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो हमारी जो क्या नाम है, रोटेशन ऑफ द शाफ्ट, ठीक है ना, रोटेशन ऑफ द शाफ्ट की वजह से आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर जो लोड कैरिंग कैपेसिटी हाइड्रोडायनेमिक बेयरिंग्स में जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है उसके लिए रोटेशन ऑफ द शाफ्ट जिम्मेदार, ठीक है ना। अगर रोटेशन नहीं होगा तो या कम लो रोटेशन होगा तो लोड भी कम उठा पाएगी, और अगर रुकी हुई है तो लोड नहीं बेयर कर पाएगी, और जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतना ज्यादा हमारा लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो ये भी देखेंगे कि हाउ इट carries the load and how the rotation of the shaft helps the bearing in carrying the load, ठीक है, carrying the load, ठीक। Then comes the hydrostatic lubricated bearings, हाइड्रोस्टैटिक। यहाँ पर क्या होता है कि नॉट ड्यू टू द मोशन ऑफ द शाफ्ट, ठीक है ना, यहाँ पर भी लुब्रिकेशन तो बहुत ज्यादा होता है, मतलब थिकनेस तो काफी ज्यादा होती है, बट यहाँ जो आप लुब्रिकेंट जो सप्लाई करते हैं इसको पंप से सप्लाई करते हैं, ठीक है ना, पंप से सप्लाई करते हैं, और उस पंप से जब सप्लाई करते हैं तो यहाँ पर वो लुब्रिकेंट का जो प्रेशर होता है, लुब्रिकेंट का जो प्रेशर होता है इसका वो प्रेशर यहाँ पर भी नजर आता है, एंड दैट प्रेशर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरिंग द लोड, ठीक है ना। तो इन हाइड्रोस्टैटिक बेयरिंग्स द शाफ्ट इज आइदर एट रेस्ट, ठीक है ना, रेस्ट पे रहती है, या फिर बहुत स्लो मूव करती है, बहुत ज्यादा स्लो मूव करती है, और स्लो मूविंग, ठीक है ना। तो इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है कि क्या नाम है, जो डैम के गेट्स वगैरह होते हैं, बड़े बड़े गेट्स होते हैं वो बहुत हैवी होते हैं, उनको आप डायरेक्टली खोल नहीं, मतलब बहुत तेजी से ऑपरेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। तो वहां पर हम हाइड्रोस्टैटिक बेयरिंग्स को का इस्तेमाल करते हैं, है ना, तो बहुत हैवी लोड होता है और बहुत स्लो मोशन होता है, ठीक है। सो देयर वी यूज हाइड्रोस्टैटिक बेयरिंग्स, और बेयरिंग्स में यहाँ पे जो प्रेशर लोड कैरिंग कैपेसिटी के लिए जो प्रेशर जनरेशन होता है वो एक्सटर्नल पंप का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हाइड्रोडायनेमिक के केस में क्या होता है, ये जो यहाँ पर प्रेशर जनरेट होता है लुब्रिकेटिंग ऑयल में, वो ड्यू टू रोटेशन ऑफ दिस जर्नल, ठीक है ना, या शाफ्ट के रोटेशन की वजह से प्रेशर डेवलप होता है, एंड दैट प्रेशर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी व्हाट, कैरिंग दी लोड या सपोर्ट दी लोड। देन इलास्टो हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेटेड बेयरिंग्स, ये जनरली आपकी रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग्स का एग्जाम्पल है, ठीक है ना, क्योंकि वहां पर भी आप क्या नाम है, क्या करते हैं, लुब्रिकेशन तो देते ही हैं बेयरिंग्स में भी। अब यहाँ इलास्टो हाइड्रोडायनेमिक का क्या मतलब है, ठीक है, इलास्टो का ये मतलब यहाँ पर आ रहा है कि लुब्रिकेटिंग ऑयल तो आपने लगाया है या लुब्रिकेंट तो लगाया है इन बिटवीन दी व्हाट, जर्नल एंड हाउसिंग, नो जर्नल, हाँ कह सकते हैं जर्नल एंड हाउसिंग, बट जैसे रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग है, जैसे मान लीजिए बॉल बेयरिंग है, ठीक है, तो बॉल बेयरिंग में जो पॉइंट कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है ना, तो इसकी वजह से यहाँ पर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, यहाँ पर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, यहाँ पर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। तो अब प्रेशर बहुत ज्यादा होगा दैट मीन्स स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, तो स्ट्रेस बहुत ज्यादा है तो ये जो बॉल है, ठीक है, या फिर ये जो रेसेस हैं, इनर और आउटर रेसेस, ये क्या करेंगे, डिफॉर्म कर जाते हैं,
ठीक है, डिफॉर्मेशन हो जाता है। कैसा डिफॉर्मेशन होता है? इलास्टिक इन नेचर, इलास्टिक डिफॉर्मेशन होता है। मतलब क्या कि ये जब ऊपर जाएगा ये वाला हिस्सा, तो यहाँ पर लोड कम हो जाएगा, ठीक है ना। लोड तो ये लोड कम होगा, स्ट्रेस कम होगा, तो ये वापस अपनी शेप रिगेन कर लेगा। दैट मीन जब लोड पड़ा तो बॉल जो है स्फेरिकल से थोड़ा सा ओवल हो गया, ठीक है ना। But after some time, when load reduces, they regain their shape. और इनमें मेटल टू मेटल कांटेक्ट ज्यादा होता है, मेटल टू मेटल कांटेक्ट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। मेटल टू मेटल कांटेक्ट बहुत ज्यादा होता है। इसका एक सबसे बढ़िया एग्जांपल जो है वो आपका कैम्स है। जो इंजन में, पेट्रोल और डीजल इंजन में कैम्स इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है ना। ठीक है, कैम एंड फॉलोअर मैकेनिज्म, ठीक। या फिर आपका गियर्स वगैरह जो है उनमें ये चीज बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि वहां पर पॉइंट कांटेक्ट, लाइन कांटेक्ट होता है और वहां पर स्ट्रेसेस बहुत ज्यादा होती हैं, जिसकी वजह से आपका मेटल जो है इलास्टिकली डिफॉर्म कर जाता है अलॉन्ग विद दी योर लुब्रिकेंट, ठीक है ना। तो वहां पे इलास्टिक डिफॉर्मेशन भी होता है, ठीक है ना। एंड ड्यू टू दैट योर मेटल टू मेटल कांटेक्ट इज ऑलवेज देयर, ठीक है ना। ठीक, तो ऐसे केसेस में हमें क्या करना होता है भाई? ऐसे केसेस में हमें क्या करना होता है? हमें जो मेटल सरफेसेस हैं वो बहुत हाई क्वालिटी की रखनी है, ठीक है ना। इस यही रीजन है कि बॉल बेयरिंग्स हैं, तो बॉल बेयरिंग्स को बनाने में बड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि इनकी क्वालिटी बहुत हाई होनी चाहिए। या गियर्स को जब बनाते हैं तो उनकी क्वालिटी जो है हमें बहुत ज्यादा हाई रखनी पड़ती है, ठीक है ना, सरफेस क्वालिटी, ठीक है। ठीक, ओके, कमिंग टू दी बाउंड्री लुब्रिकेटेड बेयरिंग्स। सो एज ऑलरेडी टोल्ड कि बाउंड्री लुब्रिकेटेड बेयरिंग्स में आपका क्या 2 से 3 लेयर्स ही होती हैं और इनमें मेटल टू मेटल कांटेक्ट बहुत ज्यादा होता है, तो इनमें फ्रिक्शन भी बहुत ज्यादा होता है। सॉलिड फिल्म लुब्रिकेटेड बेयरिंग में ऑब्वियस सी बात है, सॉलिड फिल्म में आपके देयर आर सम सॉलिड लुब्रिकेंट्स लाइक ग्रेफाइट, मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड, और उनका कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया जाता है जहां पर बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर रहता है, कि आपके जो नॉर्मल लिक्विड या ग्रीस वगैरह जो है वहां टिक ही नहीं सकते। तो वहां पर हम लोग क्या नाम है, सॉलिड लुब्रिकेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सॉलिड लुब्रिकेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, एंड सच टाइप ऑफ बेयरिंग्स आर नोन एज सॉलिड फिल्म लुब्रिकेटेड बेयरिंग्स, ठीक है। अच्छा, तो ये तो यहाँ आज इस क्लास में अभी इतना ही रखते हैं। अभी आपका कौन सा लंच, आफ्टर लंच इन सेकेंड हाफ यू हैव द प्रोजेक्ट लैब, है ना, ठीक है। सॉरी, डीएमई लैब है ना, डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट 2 का लैब है। सो वी विल कंटिन्यू दिस इन दी लैब ऑल्सो, ठीक है। आप लोग वहां पर प्रेजेंट रहें, ठीक है, ओके। और कोई डाउट हो अभी इस टॉपिक में तो यू कैन आस्क। सर बताएं भाई। सरफेस फिनिश कितनी होती है बेरिंग का, जो सरफेस, सरफेस होता है, एक मिनट, फिनिशिंग क्वालिटी? okay, we do not have exact numbers actually, but we try to keep it in microns, ठीक है ना, माइक्रॉन्स में रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इन जनरल वी ट्राई टू कीप इट इन माइक्रॉन लेवल सरफेस फिनिश में रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है, टेंस ऑफ माइक्रॉन्स के आसपास, ठीक। इज इट क्लियर? यस सर, थैंक यू। Okay, thank you everyone. You all are free to leave now. Thank you.